Hello everyone. Today we are starting the new exercise number 14.3, which is based on bar graphs and histogram of uniform width. In this you have the another type of graphs also, that is histogram of non-uniform width and the frequency polygon. So non-uniform width histogram and the frequency polygon is deleted from the syllabus. So we are doing only the bar graph and histogram of uniform width. So only question number 1, 2, 3, 4 and 5 are in your syllabus. And examples I have explained already in your online class which examples are included and which are excluded from the syllabus. Now note, I have given one note: submit this work on Monday, that is 21st September, on Chinar app. You have to upload this work on Chinar app only. Don't WhatsApp the work. Please upload on Chinar app. Okay, now question number 1. I am not explaining all the questions, just I am telling you how to draw the bar graph and histogram. Now question number 1. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages of 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage. Reproductive health conditions, the female fertility rate is 31.8%. न्यूरोफिजियाट्रिक कंडीशंस के लिए 25.4%. ठीक है, इंजरीज़ में 12.4%. ये सारा आपको क्या गिवन है कि एक सर्वे किया गया विमेंस पे, कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमन. तो क्या कॉज है इलनेस का और डेथ का अमंग द वुमेंस में, तो ये आपके कॉजेज़ गिवन है. इन द फर्स्ट कॉलम यू हैव द कॉजेज़ एंड इन द सेकेंड कॉलम यू हैव द फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज. ठीक है, नाउ दीज आर द नंबर्स. नाउ सी दीज नंबर्स केयरफुली. ऑल द नंबर्स आर इन डेसिमल फॉर्म. ठीक है, नाउ यू हैव टू टेक द स्केल फॉर ड्राइंग द बार ग्राफ. द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ ग्राफिकली. ठीक है, अब ये क्योंकि क्लास इंटरवल में नहीं है, तो क्लास इंटरवल में नहीं है तो वी हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ दिस. ठीक है, और जो क्लास इंटरवल में होते हैं लाइक 10 to 20, जो डेटा क्लास इंटरवल में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो क्लास इंटरवल में यू हैव टू मेक द हिस्टोग्राम. So here we have to draw the bar graph and the questions also are there. First of all you have to draw the bar graph and according to that bar graph you have to give the answers of the second and third part. Now अब the numbers, first of all check the numbers. All the numbers are in decimal form, so you can take the table of 10 also for the scale कि 1 unit equals to 10%, or you can take 1 unit equals to, अब if we will take 10, table of 10 means 10%. अगर हमने लिया 1 unit equals to 10%, तो अब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है आपका 31.8 है. तो 10, 20, 30 and 40. 10, 0, 10, 20, 30 and 40. on y axis you will take these also, these only. तो ये बार ग्राफ आपका बहुत छोटा बनेगा. तो so avoid the table of 10 and I have taken here the table of 2. So you have to take table of 2, table of 4, so that you can easily mark these numbers on the graph. Now first of all for drawing the graph you have to make x-axis and y-axis. So this horizontal line is x-axis and this vertical line is y-axis. And here the meeting point of x-axis and y-axis is called the origin, means O. ठीक है, now you have to take the scale. Along the y-axis you have, here we have taken 10 division equals to 2 units. 2 का टेबल हमने लिया है तो यहाँ पे 2 units या 2% you can write here. 10 division means 1 unit. 1 unit equals to 2%, मतलब जो ये आपका 1 big box है. ठीक है, 1 बिग बॉक्स को आपने क्या लिया है, ये जैसे ये आपका 1 बिग बॉक्स है. ठीक है, दिस वन, ये आपका जो बिग बॉक्स है, बिग स्क्वायर है, 1 बिग स्क्वायर है, यहाँ तक है. ठीक है, तो इसमें क्या है आपके 10 स्मॉल लाइन्स होती है, तो इसलिए यहाँ लिखा है 10 डिविजन्स. और आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इक्वल्स टू 2%, इक्वल्स टू 2%.
ठीक है. देन आफ्टर दैट यू हैव टू मार्क द नंबर्स. अब फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए यू हैव टू मार्क 31.8. अब इन द बार ग्राफ व्हेन यू विल राइट द टेबल, here you will write 0 and 31.8 is the highest number. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 and 32. Till 32 you have to write the table. Okay. अब 32 तक टेबल लिखने के बाद में आपको 31.8 मार्क करना है. अब देखो यहाँ पे हमने 2 का टेबल लिया है तो 2 के बाद में 4 आया, तो बिटवीन 2 एंड 4 जो मिड वाली जो लाइन होगी, जो लाइट होती है थोड़ी सी 5 के बाद में, स्मॉल 5 लाइंस जो होगा वो आपका नंबर क्या होगा, 3 होगा वो आपका नंबर. अब आपको क्या करना है 31. अब 31.8 मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, पहले 30 तक जाना है एंड बिटवीन दिस 30 एंड 32 दिस लाइन, जो 30 एंड 32 की मिड लाइन है वो आपका हो जाएगा 31. अब 0.8 मार्क करना है, मतलब 5 स्मॉल लाइन्स हैं आपके पास में, 5 स्मॉल लाइन्स हैं. अब 2 का टेबल बोलते हुए जाना है. 5 स्मॉल लाइन है आपके पास में, तो 2, 4, 6 एंड 8. तो जो आपकी फोर्थ वाली स्मॉल लाइन आएगी 31 के बाद में, जो फोर्थ स्मॉल लाइन है दैट इज़ योर 8. जो 1 स्मॉल लाइन है, तो 1 स्मॉल लाइन हेयर रिप्रेजेंट, 1 स्मॉल लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है 2 को रिप्रेजेंट कर रही है. मीन्स आपको 2 का टेबल बोलना है हर स्मॉल लाइन पे. तो ये आपका हो गया सेंटर वाली लाइन 31. देन आपको 2 का टेबल बोलना है 2, 4, 6, 8. तो जो आपका 31 के बाद में जो फोर्थ वाली स्मॉल लाइन आएगी, द फोर्थ स्मॉल लाइन दैट इज़ योर 31.8. ओके. और देखो और विच नंबर इज़ देयर, 25.4. अब 25, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी फ्रॉम हेयर, 25 विल कम बिटवीन 24 एंड 26 के जो बिल्कुल मिड वाली लाइन है वो होगी आपकी 25. अब 25.4 है, तो आफ्टर 25 यू विल काउंट. ठीक है, तो स्मॉल लाइन को 2 काउंट करना है, तो 2 एंड 4 मीन्स सेकेंड लाइन. आफ्टर 25 द सेकेंड लाइन इज़ 25.4. ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ दिस graph, and I have written the answers also. You have to see the answers from it, and here you will write that this y-axis represent female fertility rate and this x-axis represent what, represent causes of illness and death amongst women. ठीक है, तो here first of all you have to check out कि your origin should be marked, your x-axis should be marked, your y-axis should be marked, and scale should be written, and what x-axis is representing and what y-axis is representing. These 6 things you have to take care of. These 6 things they should be there, then only you have to start drawing the graph. अब जब आप बार ग्राफ बना रहे हो तो ये आपके सेपरेट बार्स बनेंगे. तो ये आपका 0 हो गया, ओरिजिन O हो गया. अब यहाँ से आपको 1 बॉक्स लीव करके फर्स्ट बार बनाना है, देन 1 बॉक्स लीव करके सेकंड बार, 1 बॉक्स लीव करके थर्ड बार, ऐसे. और यहाँ पे बॉक्सेस लीव नहीं करने जब आप 2 का टेबल लिख रहे हो, तब डोंट लीव द बॉक्सेस. नाउ आंसर्स यू कैन see right from here. Now question number 2, the following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different section of the Indian society is given below. ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ यहाँ पे गिवन है. SC गर्ल्स है 940, ST है 970, नॉन SC ST 920 है. अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर, चेक आउट द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ हियर 910 and the largest number is here 970. ठीक है, तो अब ये सारे राउंडिंग ऑफ में ऑलरेडी 10, 30, 910, 930, 920, 950, 920, तो 10 का डिफरेंस आप ले सकते हो यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे 910 से स्टार्ट है, तो 910 से स्टार्ट है तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पे किंग का साइन बनाना है. ये दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस. ये आपका ओरिजिन हो गया. अब 900 नंबर्स तो हम मार्क नहीं कर सकते ना, तो दिस इज़ द साइन ऑफ किंग. जब आपने यहाँ से ऊपर ले गए ये ऐसे, ठीक
ठीक है, एंड दिस वन। तो दिस इज़ द साइन ऑफ किंग। ये यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए किंग का साइन होता है, ठीक है। किंग का साइन, किंग का मीनिंग क्या होता है कि आपके 0 to 909 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इस किंग के साइन में इंक्लूड हो गए, इसके अंदर चले गए वो सारे नंबर्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 910 से लिया, देन 920, 930, 940, 10 का डिफरेंस लिया है, तो यू हैव टू राइट द स्केल कि आपका 10 डिविजन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स मीन्स 10 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, ठीक है। ये आपको यहाँ पे यू हैव टू राइट हियर 10 डिवीज़न इक्वल्स टू 10 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। नाउ देन you have to mark you have to draw the graphs. This is the simple one, I am not explaining this. So and write here what y-axis is representing and what x-axis is representing, so you can draw it easily because you have already done it in class 6, 7 and 8. And this one is also simple, third one. Given below are the seats won by the different political parties in the polling outcome of a state assembly election. पॉलिटिकल पार्टीज़ गिवन है A, B, C, D, E and F, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम है, एंड सीट्स वन, द नंबर्स आर गिवन हेयर कि हाउ मेनी सीट्स दे वन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट एंड विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो विच पॉलिटिकल पार्टी, तो यू कैन easily tell by looking the data also and by looking the graph also. Now first of all you have to make the graph. अब यहाँ पे देखो 75, 55, 37, 29, 10, 37, तो you can take the table of 10, that is easier for you, or you can take the table of 5 also, ठीक है। Here I have taken the table of 10 कि 10 divisions मतलब वन बिग स्क्वायर मीन्स 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में, 10 सीट्स। ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो यू कैन राइट हियर 10 सीट्स, या यू कैन राइट हियर 10 डिवीज़न इक्वल्स टू 10 सीट्स, मतलब जो आपका 1 यूनिट है या 1 सेंटीमीटर है वो 10 सीट को शो कर रही है। हियर यू हैव टू राइट द ओरिजिन O, तो 10, 20, 30, 40 एंड यू कैन ईजीली मार्क the numbers because this you have already done. Like 37 है, तो 30 के बाद में you have to count small 7 lines. जब आप 30 के बाद small 7 lines count करोगे तो 37 हो जाएगा, ठीक है। And answer also I have given here for you. Now question number 4 is important now. अब 1, 2, 3 में तो you have to draw the bar graph. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्लास इंटरवल्स गिवन है। अब क्लास इंटरवल्स में यू हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम्स में क्या होता है कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंट क्या होता है कि बार ग्राफ में तो ये सेपरेट बार्स बनते हैं, और हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं वो जॉइन होके बनेंगे क्योंकि वो क्लास इंटरवल पे बेस होता है। नाउ सी द क्लास इंटरवल्स केयरफुली। यहाँ पे क्लास इंटरवल देखो 180 to 126, देन 127 से 135, फिर देन 136 से। मीन्स जो ये फर्स्ट वाले की अपर लिमिट है और जो सेकंड वाले की लोअर लिमिट है दैट आर नॉट सेम। मीन्स दीज क्लास इंटरवल्स आर इन डिसकंटिन्यूस फॉर्म। तो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक दिस टेबल, मेक दीज क्लास इंटरवल इन, ये डिसकंटिन्यूस में, इसको हमको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, कंटिन्यूस फॉर्म में। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन कंटिन्यूस फॉर्म, और कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 इन द अपर लिमिट। जब हम ये चीज़ कर लेंगे सारी क्लास इंटरवल में तो हमारी कंटिन्यूस फॉर्म में टेबल हो जाएगी। तो 118 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 117.5 टू 126 में 0.5 ऐड करेंगे तो 126.5, देन सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम 127 तो 126.5 एंड 135.5। लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द न्यू टेबल। तो दिस इज़ द टेबल, दिस इज़ द कंटिन्यूस टेबल। डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस में किया है तो ये आपके पास में कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द टेबल आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये कंटिन्यूस फॉर्म वाली टेबल आपके पास में आ जाएगी, देन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द हिस्टोग्राम,
ठीक है ना। अब यहाँ हिस्टोग्राम में आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, ऑन द एक्स एक्सिस लेंथ रिप्रेजेंट करनी है एंड वाई एक्सिस में आपकी फ्रीक्वेंसी है 117.5 टू 126.5, 126.5 टू 135.5। तो यू हैव टू राइट द नंबर्स लाइक दिस। हेयर यू विल टेक 0, ठीक है, देन 0 से 117.5, 126.5, 135, 117.5 ये लाइन हो गई, 126.5 this one, 135.5 this one, 144.5 this one, 153.5 this one. Now as you easily find the length of this, length of the class interval, what is the width of the classes, ठीक है। तो 126.5 माइनस 117.5 कितना डिफरेंस है इनका, 16 माइनस 7 9, 16 माइनस 7 इज़ 9, तो 9 का डिफरेंस है इनमें। नाउ यू कैन सी ये डिफरेंस आपका 9 का है, ये डिफरेंस आपका 9 का है, ये डिफरेंस, ऑल द डिफरेंस आर ऑफ 9, सब में 9 नंबर्स का डिफरेंस है। बट 0 टू 117.5 में 9 का डिफरेंस नहीं है, इसमें कितना डिफरेंस है, 117.5 का डिफरेंस है। तो बाकी सारे डिफरेंसेस तो 9 के हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला जो डिफरेंस है ये आपका 117.5 का है। तो हियर यू हैव टू मेक द साइन ऑफ द किंग, ये आपका किंग का साइन यहाँ पे आ जाना चाहिए। इफ़ यू विल नॉट मेक इट, हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है, क्योंकि सारे जितने भी डिफरेंसेस हैं वो इक्वल दिखने चाहिए ना। अब हियर दिस इज नंबर ऑफ लीव्स, द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ 40 लीव्स of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table। तो ये आपकी नंबर ऑफ़ लीव्स है, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ लीव्स के लिए आपको क्या करना है, अब आपके पास में जो नंबर्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, वो आपको केयरफुली वॉच करनी है, 3, 5, 9, 12। तो हाईएस्ट लोएस्ट नंबर इज़ 2 एंड हाईएस्ट नंबर इज़ 12। तो यू कैन टेक टेबल ऑफ 2 एंड ईजीली यू कैन रिप्रेजेंट दीज नंबर्स। तो ये आपने लिया 117.5 टू 126.5 पे आपका है 3 रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपका 3 एंड ऑन द बार्स यू हैव टू राइट द नंबर्स ऑल्सो। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 3, तो ये आपने यहाँ पे बना दिया 3, ये आपका फर्स्ट बार हो गया। देन 126.5 टू 135.5 पे आपका जो नंबर ऑफ़ लीव्स है वो 5 है, तो यहीं से आपको ये ऊपर 5 तक ले जाना है और ये आपका सेकेंड बार बन जाएगा 5। Here write the numbers also on the bars. Then 135.5 to 144.5 में आपका 9 है, तो इसे ज्वाइन करते हुए आपको 9 तक ले जाना है। On the bars you have to write the numbers on the bars in all the graphs। सारे ग्राफ्स में बार्स के ऊपर नंबर लिखने हैं आपको, ओके। तो and the answer of the question also I have written here, you can see from here। Now question number 5, the following table gives the lifetime of 400 neon lamps। अब here also the data is in class interval form, ये आपके पास में class intervals given से means you have to draw the histogram and it is written here also, represent the given information with the help of histogram, ठीक है। and numbers are very simple, you can take the table of 14 also, ठीक है, or you can take the table of 10 also here, that will be easier to you। तो on the x axis you will represent lifetime in hour and on the y axis number of lamps। अब ये डेटा आपका यहाँ से जो क्लास इंटरवल है 300 टू 400 है, 400 टू 500 है, मीन्स क्लास विड्थ कितनी हो गई आपकी 100 हो गई, क्योंकि 100 का डिफरेंस है। अब 0 टू आपको 300 जाना है, 0 टू 300 देन 400 देन 500। अब ये डिफरेंस 100 है, दिस इज़ 100, दिस इज़ 100, दिस इज़ 100, बट जो स्टार्टिंग डिफरेंस है दैट इज़ 300। 0 टू 300 जो स्टार्टिंग का डिफरेंस है वो 300 है, आफ्टर दैट 100 100 100 100 है। तो यहाँ पे यू हैव टू मार्क द किंग साइन, आपको यहाँ पे किंग साइन मार्क करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका 0 टू 300 जो है वो सारा आपका इस किंग के साइन में चला गया। एंड ऑन द वाई एक्सिस यू हैव टू राइट द टेबल ऑफ 20, 10, 20, 30, 40 एंड ऑन द बार्स you have to write the number 14, 56, 60। तो here you have to write the numbers also on the bar 14, 56, 60 etc, जो भी आपका नंबर है। एंड
give the answer. What is the question? How many lamps have a lifetime of more than 700 hours? मोर देन 700 आवर्स कितने लैम्प्स की लाइफ टाइम है? तो मोर देन 700 मतलब क्या हो गया? आपको यहाँ से लेना है ये 700 टू 1000 वाला, तो ये जितना भी है 74 प्लस 62 प्लस 48, इनको आपको ऐड कर लेना है. तो हियर नंबर ऑफ लैम्प हैविंग अ लाइफ टाइम more than 700 hours, 74 plus 62 plus 48 is 184. This is your answer of the question. Okay, now these are the 5 graphs and you have to do these graphs on the graph paper and paste it in your notebook, and no need to write the questions, only draw the graphs, put the numbers and write the answers of the asked questions. ठीक है. बट इन क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू ड्रॉ, इन क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल ऑफ कंटिन्यूस फॉर्म. जो हमने डिसकंटिन्यूस वाले को कंटिन्यूस में चेंज किया था, तो बोथ द टेबल्स यू हैव टू ड्रॉ, एंड इन ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू ड्रॉ द टेबल ओनली. In all the questions you have to draw the tables. Don't write the question but draw the tables and write the answers of the given questions. Okay, now this work you have to submit it on, you have to submit on Monday. Note also I have given here, you have to submit this on Monday on Chinar app only. Okay, thank you.